Good evening, everyone. Warm welcome to Textbook JabCab YouTube channel. My name is Madhav Arora. I welcome you all in the next session. And today we are starting with Module B. As we have already done 100 questions, important and tough questions based on Module A. Today we will be starting with the top 100 questions related to Module B. Next 5 sessions we will be covering 100 MCQs for the Module B as well. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, and do not forget to like the session. Do not forget to share the session with your friends so that more and more students, they know that the series is going live and the series is going to help them a lot if they are preparing for JAB November 2025 examination. Okay, ji? So before I start, if you have any doubt, you may ask please, else we'll continue our discussion without any further delay, and I'm pretty sure you are going to enjoy today's discussion as well. ठीक है जी, स्टार्ट करें. चलो, just give me a second. We'll begin in a while. हाँ, voice is clear, everything is fine. Here we go with the first question. Principle of lending, safety, liquidity, profitability based. I have 5 statements. You have to identify. Out of these 5 statements, which all statements are correct. More than one statement can be correct. Liquidity refers to the bank's ability to convert loans into cash without significant loss. Liquidity means when you convert your asset into cash, and loan given by the bank is also bank's asset. So that is true. Safety ensure that borrower is willing and able to repay the loan. Safety assures that borrower is willing and able to pay back the loan. That is true. Profitability is primary principle. Other principles are secondary. No sir, that is not the case. This is not the case. जो हम profitability की बात करते हैं, it is important but it is not overriding. It is important but it should not be overriding the other agendas of the bank. Diversification reduces the concentration risk. That is true. Security is the sole determinant of loan safety. देखो जो आप collateral receive कर रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वो sole determinant of loan safety नहीं, आपके borrower का रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बोरोवर का रीपेमेंट कैपेसिटी एप्रोप्रिएट नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो योर लोन विल बी अनसेफ. सो कीपिंग दैट इन माइंड, 1 to 4 आर करेक्ट, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, 1 second. The next question talks about credit worthiness analysis. How the credit worthiness of the borrower is analyzed. उसके लिए क्या प्रोसीजर है. क्रेडिट वर्दीनेस की अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सर, क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो असेस करता है बोरोवर की कैपेसिटी, करेक्टर एंड कैपिटल. बोरोवर की कैपेसिटी, करेक्टर एंड कैपिटल. क्या ये पॉइंट सही है? सर, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं बात करूं क्रेडिट वर्दीनेस में, इसमें 3 C's इन्वॉल्व है. 3 C's stands for capacity of the borrower to repay the loan, character of the borrower, as well as the capital with the borrower. दूसरा पॉइंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड प्रीसीड्स लोन सैंक्शन. बिल्कुल सर, क्रेडिट वर्दीनेस एक प्रोसेस है अंडर द क्रेडिट अप्रेजल ओनली, और बिफोर लोन इज सैंक्शन दीज स्टेप्स आर टेकन. इट डज नॉट इन्वॉल्व, नहीं सर, ये तो गलत है. इसमें तो ऑब्वियसली आपके सिबिल को या क्रेडिट स्कोर को रिव्यू किया जाता है, उसके बिना तो आपका क्रेडिट अप्रेजल या क्रेडिट वर्दीनेस एनालिसिस कंप्लीट ही नहीं होगा. कैश फ्लो एनालिसिस इज एसेंशियल टू डिटरमाइन रीपेमेंट कैपेसिटी. बिल्कुल सर, कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपको लोन का रीपेमेंट मिलेगा या नहीं. कोलैटरल इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस. कोलैटरल आपके क्रेडिट वर्दीनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. कोलैटरल इज समथिंग कि आप एक सिक्योरिटी दे रहे हैं बिफोर बोरोइंग अ लोन, बट उससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी नहीं, वो तो आपके पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री पे बढ़ेगी. सो आंसर इज गोइंग टू बी 1 to 4 अगेन. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, द फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर्स. नहीं सर, फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ partners only, so that is wrong. Liability of partners is unlimited and joint and several. जो liability है आपके partners की, that would be unlimited,
joint and several, बिल्कुल सर liability जो है that can be firm is not a separate legal entity as we have discussed. Liability is unlimited in case of firm. नेक्स्ट इज अ पार्टनरशिप डीड गवर्न्स देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, बिल्कुल पार्टनरशिप डीड से पता चलता है कि इसकी क्या राइट है क्या ड्यूटीज है. डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्म अनलेस अदरवाइज अग्रीड, दैट इज ट्रू. पार्टनर्स कैन नॉट बाइंड द फर्म इन कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, ये गलत है. पार्टनर्स अपनी फर्म को बाइंड कर सकते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक. सो आंसर इज गोइंग टू बी 2, 3, 4. रेस्ट फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. नेक्स्ट, fund based credit facilities. Fund based credit facility का मतलब when actually funds are given by the bank as a loan. So fund based credit facility they result in actual outflow of the funds from the bank. बिल्कुल सर, fund based का मतलब ये है कि आप actually loan दे रहे हैं, funds आपके बैंक से बाहर flow कर रहे हैं. Cash credit, overdraft, bills discounting are examples of fund based credit. Yes sir, cash ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, इसमें एक्चुअली फंड्स आउटफ्लो कर रहे हैं, दैट इज ट्रू. नॉन फंड फैसिलिटीज इन्वॉल्व ओनली कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर लाइबिलिटीज एंड दैट टू इन स्पेशल केसेस. आज आपने किसी को गारंटी दी एज अ बैंक और जिसको आपने गारंटी दी उसके लिए आपने ये कहा कि अगर फ्यूचर में मेरा गारंटर आपको लोन नहीं दे पाया देन आई विल रीपे. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग दी future scenarios a contingent scenario will appear where you have to pay the amount when your guarantor is not giving it, when your party is not giving, for which you have provided the guarantee. Letter of credit is not a fund based, it is a non fund based. Term loans are fund based, that is true. So इसका मतलब fourth statement के अलावा 1, 2, 3, 5 are the correct statements, that is true. Moving on to the next one. टर्म लोन वर्सेस वर्किंग कैपिटल लोन. वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल लोन उस लोन को कहा जाता है जो आपको अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, टू मेक योर डे टू डे एक्सपेंसेस, टू मेक योर डे टू डे बिजनेस टू रन. टर्म लोन्स आर यूज्ड फॉर फिक्स्ड असेट क्रिएशन. बिल्कुल सही है सर. आप जब टर्म लोन लेते हैं जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, यू विल बी पेइंग द रिटर्न ऑफ द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज अ टर्म लोन. जहां पे टाइम पीरियड प्री फिक्स्ड है, रीपेमेंट प्रोसीजर प्री फिक्स्ड है, वो आप फिक्स्ड एसेट क्रिएशन के लिए लेते हैं, दैट इज ट्रू. वर्किंग कैपिटल लोन्स फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस, दैट इज ट्रू. टर्म लोन्स आर यूजुअली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टर्म लोन्स आर नॉट लेस देन 1 year, दैट इज नॉट ट्रू. I would say term loans are usually long term, greater than 1 year. Working capital cycle helps working capital limit. तो जो आपका working capital cycle है वो define करता है, वो help करता है बैंक को to identify the working capital limit. That is true. Term loans are repayable on demand. No sir, if you want to repay the loan on demand, then you should go for demand loan. So this is wrong. So answer is going to be 1, 2, 4 is the correct answer. Moving on to the next one. Non-fund based facilities are the facilities which create contingent liabilities. अभी पढ़ा, बिल्कुल ठीक है. Bank guarantees, letter of credit are the examples, बिल्कुल ठीक है. There is no risk to the bank, गलत है सर. रिस्क तो है, कल को जिसकी गारंटी दी अगर वही मुकर गया तो लॉस तो बैंक को होगा, तो रिस्क तो है. They can convert into fund based if invoked. इसका मतलब क्या? Risk exists if invoked, become fund based liability. आज अगर आपका गारंटी दी थी, गारंटर जिसके लिए गारंटी थी वो भाग गया, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपके हाथों से पैसा आउटफ्लो होगा, तो इट ऑब्वियसली कन्वर्टेड इनटू द फंड बेस्ड इफ इन्वॉक्ड. दे आर रिकॉर्डेड इन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू. इसे ऑफ बैलेंस शीट आइटम में रखा जाता है, इट्स नॉट केप्ट इन द बैलेंस शीट आइटम्स. 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट, बट द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्रेडिट अप्रेजल. क्रेडिट अप्रेजल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. क्रेडिट अप्रेजल involve both quantitative and qualitative assessment of the borrower, that is true. It is conducted, नहीं sir, it is conducted before sanction of loan. जब लोन ही दे दिया तो क्रेडिट अप्रेजल का करना क्या है? It covers technical, financial and economic feasibility of the project, that is true. DSCR and IRR are the part of appraisal tools. Any idea guys? ये terms क्या है? We have two terms, one is DSCR and the other one we have is IRR. in terms का मतलब क्या है? Any idea? Anyone? नहीं, मैं बताता हूँ. DSCR stands for debt service coverage ratio, which means when we measure the borrower's ability to repay the loan obligation, that is interest and principal, from the operating income.
That is what we need to understand. So if it is greater than 1, it is good. If it is less than 1, it is tough. That means borrower may not pay back the funds in time. IRR stands for internal rate of return. So measure the project rate of return, the discount rate at which net present value of cash inflows is equals to the cash outflows when that means net present value is equals to 0. That is a scenario. So अब इस केस में अगर हम बात करें तो जो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है दैट इज considered good if it is greater than 1.25. Internal rate returns, they are good if the cost of funds is greater than the loan repayments. ठीक है जी. So DSCR, IRR, the part of appraisals tool, that is true. It is mandatory that all the credit proposals above 5 lakhs. नहीं सर, ऐसा नहीं है कि अगर आपका लोन 25 लाख से ऊपर है तभी क्रेडिट अप्रेजल होगा. दैट इज नॉट अ केस, दैट इज नॉट अ कंडीशन. सो इन दैट केस fifth option is wrong, so answer is going to be 1, 3, 4. Next, methods of working capital assessment. Methods of working capital assessment की अगर हम बात करें तो उस केस में turnover method Nayak committee applies to the units with limit up to 5 crores. That is true. That is absolutely true. Turnover method up to 5 crores तक valid है. MPBF. What is this MPBF? Give me the full form. MPBF, give me the full form. It stands for what? Any idea? Sir, it basically stands for what? If someone asks me, then my answer to this particular question is MPBF. Basically means maximum permissible bank finance. It is the maximum amount of working capital that bank can extend to a borrower as per the RBI's Tandon Committee, which came in 1975. तो इस केस में अगर हम बात करें तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग इज मेथड 1 वेयर बोरोवर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू net borrower contribution minimum 25% of the working capital gap. Method 2 talks about borrower's contribution is minimum 25% of total capital asset and borrower contribution is minimum 25% of the total current asset after excluding the core current assets. तो ये methods है जिसके basis पे these calculations are done. So keeping that in mind, this is correct. Projected balance sheet method is for traders. Projected balance sheet method is for traders. नहीं सर, अगर हम projected balance sheet method की बात करें, it is not for traders. That is wrong. It is basically for these manufacturers. Cash budget method suits seasonal business. That is true. Cash budget जो है वो seasonal business के लिए ठीक है. All methods they are mutually exclusive. No sir, they are not mutually exclusive. P&L projection is different and they are not mutually exclusive, so that is wrong. So answer is going to be 1, 2, 4 are correct. Rest 3 and 5th option are wrong. Next, maximum permissible banking finance or maximum permissible bank finance is calculated with the help of Tandon's committee. So in this particular case, which all points are going to be correct if I go with those points? So the first one we have is it ensures minimum borrower's margin in the working capital. इसकी मदद से minimum borrower margin in the working capital is calculated. That is true. Under method 1, bank finance 75% of the current asset. Wrong. This is absolutely wrong. Tandon committee or method defines contribution. It ensures credit discipline and minimum margin. अगर मैं बात करूं second method की 25% of the current asset. Third method says 25%. Third method says 25% of total assets after excluding the core current assets. After excluding the core current asset, and method 1 is basically 25% of the working capital gap. 25% of the working capital gap. इसको अगर आप कहें 75% of current asset, then I would say it is 75% of current asset minus current liability. So bank finance up to 75% of the working capital gap. Borrower brings 25% as margin. So borrower जो देगा that will be 25% of the margin. So keeping that in mind, second statement is wrong. Third is in the second method, borrower contributes 25%. That is true.
Third, 25% of the total current assets less the core current assets, that is true. It ensures greater discipline in credit usage, yes sir, obviously. इससे आपका credit usage में जो discipline है वो बढ़ेगा, so answer is going to be 1, 3, 4, 5. Next, debt. The next point is debt service coverage ratio is equals to net cash accruals divided by total debt service obligations. Is this point correct? सोच के बताओ. बिल्कुल सही है सर, कि आपके पास जो कैश है उसमें से उस कैश का आप जब डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जो आपको इस साल पे करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है. इफ इट इज बिलो 1 इट इंडिकेट्स रीपेमेंट स्ट्रेन. हाँ, अगर ये 1 से कम होगा दैट इज नॉट गुड फॉर अ लेंडर. Current ratio measures the liquidity position. True. Fixed asset turnover indicates utilization and efficiency. True. Debt equity ratio assesses long-term solvency, not short-term solvency. So answer is going to be 1, 2, 3, 4. Next, interest rate concept related. We have a question. Floating rate loans are linked to the external benchmarks. That is external benchmark lending rate, MCLR. Base rate, BPLR, that is true. MCLR replaced BPLR system in 2016. nahi sir, MCLR has replaced base rate in 2016. So keeping that in mind, the second statement is wrong. Keeping that in mind, the second statement is wrong. External benchmark lending rate is linked to repo rate. Yes sir, one of the rate is repo rate, that is true. Repo rate linked lending rates change automatically with policy rates. Yes, जैसे जैसे आपका policy rate change होगा, आपके lending rates for the bank will change and they come under the category of floating loan. That is true. So keeping that in mind, 1, 3 and 4 are correct. Keeping that in mind, 1, 3 and 4 are correct. Fifth statement says fixed rate loans must be reset quarterly. No sir, that has not been the case. Fixed rate loans are fixed, they are not reset. But the floating loans, they are reset generally on quarterly basis. Okay, moving on to the next question. So the next question is loan account operations. If we talk about the loan account operations, what does they say? In case of loan account operation, the first point we have is drawing power is equals to stock value minus margin. That is correct. So जो drawing power है वो derive की जाती है आपके stock में से जब margin को minus किया जाए. ड्रॉइंग पावर इज रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट स्टॉक. बिल्कुल सही है सर, जैसे जैसे आपका स्टॉक रिवाइज होगा आपकी ड्रॉइंग पावर भी रिवाइज होगी. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट्स इज चार्ज ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस. दैट इज ट्रू. बैंक मस्ट क्रेडिट बोरोवर्स अकाउंट व्हेन लोन इज सैंक्शनड. बैंक मस्ट क्रेडिट बोरोवर्स अकाउंट व्हेन लोन इज सैंक्शनड. So credit dispersal depends on documentation. It is not done automatically. जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे लोन डिस्पर्स तभी होगा. सैंक्शन का मतलब डिस्पर्समेंट नहीं होता. ड्रॉइंग बियॉन्ड ड्रॉइंग पावर मेक्स अकाउंट इरेगुलर. बिल्कुल सर, अगर आप अपनी पावर से ज्यादा विड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ इरेगुलर बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट. नेक्स्ट, लोन डॉक्यूमेंटेशन. सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन gives bank legal right to recover dues. True. इसीलिए KYC या मैं कहूँ customer due diligence or enhanced due diligence is done. Stamping ensures enforceability in front of court. That means to make a contract a legal contract. That is true. Registration is compulsory for all loan documents. Registration is compulsory for all loan documents. That is true. Renewal of limits. Registration is compulsory for all loan document. नहीं सर, रजिस्ट्रेशन हर एक लोन डॉक्यूमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है. Renewal of limits require document revival. That is true. Improper documentation can render the security unenforceable. That is true. अगर आपका improper documentation है तो इससे आपकी security unenforceable हो जाएगी. That is true. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. Next, common loan products. First we have the overdraft is granted against current account. It can be granted against current account, no worries. Cash credit is mainly for the working capital, obviously. Demand loan is repayable after. नहीं सर, demand loan का मतलब ये है that it will be paid back on the demand of the lender. जब demand करेगा lender तो within a 72 hours of window borrower will pay back.
टर्म लोन इज रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज ट्रू, टर्म लोन जो है दैट विल बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। बिल डिस्काउंटिंग इज अ पोस्ट सेल फाइनेंसिंग फैसिलिटी, बिल्कुल सही है। मतलब क्या हुआ, मान लो एक पार्टी है, उस पार्टी ने एक्स कंपनी से कुछ प्रोडक्ट खरीदे और बदले में बिल दे दिया कि भैया आई विल बी मेकिंग योर पेमेंट आफ्टर 3 months। अब ये एक्स उसी बिल को एसबीआई के पास लेकर गया, क्योंकि एसबीआई ने ये बिल्स इशू किए थे इस इंडिविजुअल को, दिस एसबीआई इज द इंडिविजुअल्स बैंक, और एक्स ने वो बिल्स देके उसे इनकैश करा लिया एसबीआई से, तो एसबीआई ने पैसा दे दिया, एसबीआई ने पैसा दे दिया। तो एंड ऑफ द डे क्या है, सब बिल डिस्काउंटिंग कब हुआ, एक्स ने बिल डिस्काउंटिंग कब किया, जब सेल हो गई, पोस्ट सेल फैसिलिटी है, दैट इज ट्रू। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2, 4 and 5। नेक्स्ट, recovery assets guidelines. So if I talk about the recovery asset guidelines, banks they must engage recovery agents through authorized channels. Banks they must engage recovery agents through authorized channels, that is correct. Second is recovery agents can use coercive method only after 3 months of default। नहीं सर, ये कहाँ लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिकवरी एजेंट्स आरबीआई ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर लिया कि आपको कोई भी करेक्टिव एक्शंस लेने ही नहीं है, 3 महीने क्या 6 महीने क्या। एजेंट्स मस्ट कैरी वैलिड authorization letters as well as IDs, that is true. Banks are liable for agent misconduct, बिल्कुल सर, बैंक की लाइबिलिटी बनेगी। borrower must be given prior intimation before visit, that is also true। मैं बात कर रहा हूं रिकवरी एजेंट्स की। क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल्स, पहला स्टॉक स्टेटमेंट हेल्प मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल। तो आपका जो स्टॉक स्टेटमेंट है, इससे ये पता चलता है कि आपके बिजनेस का इन्वेंट्री लेवल क्या है, उससे कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट मॉनिटरिंग की जा सकती है। इट विल बी बेटर document for the bank to make a decision कि whether the loan should be given to you or not। Periodic inspection ensures asset existence, बिल्कुल, अगर आप periodically विजिट करेंगे इट्स फाइन, अदरवाइज पता चला कि आपका इन्वेंट्री खाली हो गया और आपको पता तक नहीं है। अकाउंट टर्नओवर एनालिसिस डिटेक्ट द फंड डाइवर्जन, बिल्कुल सर, अगर आप अकाउंट टर्नओवर को एनालाइज करेंगे तो उससे आपके फंड कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट पेमेंट इज अ वार्निंग सिग्नल। Renewal of limits is purely procedural. Renewal of limits is not purely procedural because renewal involves reappraisal, not procedural formality। तो उसमें आपका reappraisal किया जाएगा, इसमें कोई procedural formalities नहीं है कि वो परफॉर्म कर दो और आपको लोन जो है वो रिन्यू हो जाएगा। नहीं, दोबारा से क्रेडिट अप्रेजल होगा, असेसमेंट होगा, तब जाकर आपको रिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL target support inclusive growth, that is absolutely correct। Banks they must ensure availability before lending under PSL, that is true। Security norms are always waived, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा priority sector lending का लोन collateral free होगा, that is not the case। Lending principles still apply to priority sector lending loans, that is true। Priority sector lending loans include export credit, that is true, agriculture export credit, weaker section, renewable energy, एजुकेशन लोन, होम लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सपोर्ट, ये एमएसएमई जो भी मैंने मिस किया था वो इंक्लूड कर लेना। दीज आर दी 8 सब सेक्टर्स विच आर टारगेटेड। नेक्स्ट इज क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस। इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस, सैंक्शन इज अप्रूवल ऑफ फैसिलिटी विद इन डेलिकेटेड अथॉरिटी, दैट इज ट्रू। सेकेंड इज डिस्पर्समेंट प्रीसीड्स डॉक्यूमेंटेशन। डिस्पर्समेंट क्या डॉक्यूमेंटेशन से पहले होगा? नहीं, डिस्पर्समेंट सक्सीड्स डॉक्यूमेंटेशन। क्रेडिट कमेटी अप्रूवल रिप्लेसेस। ओके, तो अगर हम क्रेडिट अप्रूवल की बात करें तो जो पॉइंट है दैट इज सैंक्शन लेटर। सो सैंक्शन लेटर पॉइंट पे अगर हम बढ़े तो सैंक्शन लेटर मस्ट स्पेसिफाई टर्म्स एंड कंडीशंस, ये बिल्कुल सही है सर। जो आपकी सैंक्शन लेटर है उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी जरूरी है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग इज पार्ट ऑफ क्रेडिट साइकिल। पोस्ट सैंक्शन के बाद भी मॉनिटरिंग की जाएगी आपके lending which has been done by the bank. It is again a part of credit cycle, that is true. So keeping that in mind, 1, 4 and 5 are correct. Next is loan classification and recovery. An account overdue for greater than 90 days will become NPA, that is correct. Substandard asset NPA up to 12 months, correct. Doubtful asset NPA greater than 12 months, that is correct। लॉस असेट जो टर्म है, लॉस असेट जो टर्म है, दैट इज गिवन एज एन अनकलेक्टेबल लोन बाय द ऑडिटर और द बैंक, दैट इज ट्रू।
Provisioning for loss asset is 100%, not 15%. So keeping that in mind, 1, 2, 3, 4 are correct. Remember this, 1, 2, 3, 4 are the correct answers. Last question, fair practice code for lenders. If we talk about the fair practice code for lenders, then in that particular case, bank must provide acknowledgement of loan application. True, borrower must be informed of reasons for loan rejection. True, interest rate changes must be communicated transparently. अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर रहे हैं, दैट शुड बी इंडिकेटेड ट्रांसपेरेंटली. दैट इज ट्रू. डिस्क्लोजर अंडर एफपीसी आर वॉलंटरी? नो सर, दे आर मैंडेटरी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन क्या कहता है? सर क्वेश्चन बेस्ड है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कोलैटरल और उनके करेक्टरिस्टिक्स पे. 5 स्टेटमेंट्स है, चेक करनी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पहला, कोलैटरल विद हाई मार्केटेबल collaterals with high marketability are preferred because they are easier and quicker to realize. इसका मतलब क्या? अगर मान लो आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को कोलैटरल के फॉर्म में गोल्ड दिया, तो बैंक के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है. बैंक के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि एट द टाइम ऑफ वी कैन से ड्यूरिंग द डिफॉल्ट ऑफ लोन उसे कन्वर्ट करना इनटू द करेंसी, उससे अपने पैसे को रिकवर करना बैंक के लिए आसान है. सो दैट इज करेक्ट. Intangible assets like goodwill are usually highly liquid and idle as collateral for working capital. देखो पहला पॉइंट, intangible assets जो है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी की सारी जो assets हैं, they are very hard to liquid, they are illiquid assets we can say. एंड जनरली जब आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, तो उस केस में पुअर कोलैटरल के फॉर्म में गुडविल को माना जाता है. इट्स अ प्लस पॉइंट बट इट इज नॉट प्रेफर्ड बाय द बैंक, सो दैट इज नॉट करेक्ट. दूसरा पॉइंट आता है, अ लीन क्रिएटेड ओवर एन एसेट ट्रांसफर्स लीगल टाइटल ऑफ दैट एसेट टू द बैंक. अगर आपने एक एसेट के ऊपर लीन क्रिएट किया, तो लीन क्या है सर? लीन विल गिव द राइट टू रिटेन और रियलाइज but do not transfer the legal title. Remember that title transfer अगर कब होगा सर? In case of mortgage, in case of assignment या फिर in case of sale. So ये भी गलत हो जाएगा. Collateral valuation should explicitly consider the realizable value and resale cost. तो जो आपका collateral valuation है, उसका valuation हम किस पे गिनते हैं सर? हम गिनते हैं 3-4 चीजों पे. पहला, उसका existing claim क्या है, उसका real value क्या है, और उसके साथ साथ अगर हम उसे बेचेंगे तो सेल में क्या कॉस्ट आएगा, उसे भी इंक्लूड किया जाता है. कोलैटरल दैट इज फंजिबल, दैट इज कमोडिटीज, रिड्यूसेस मॉनिटरिंग कॉस्ट फॉर द लेंडर्स. सर जो फंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड कमोडिटी स्टॉक्स हैं, दे आर इजियर टू मॉनिटर, और अगर उन्हें मॉनिटर करना आसान है तो मॉनिटरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो कीपिंग दैट इन माइंड, 1, 4, 5 आर करेक्ट. इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन बात करता है किसकी? इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटीज की. अब जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटी इज इफेक्टिव ओनली इफ इट इज एनफोर्सेबल अंडर लॉ एंड प्रैक्टिकली रियलाइजेबल. सर लीगल एनफोर्सेबिलिटी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल रियलाइजेबिलिटी उसे प्रैक्टिकल वे में यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, वो फंडामेंटल्स होने बहुत जरूरी है, तभी आपकी सिक्योरिटी इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं. दैट इज करेक्ट. मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इज इररेलेवेंट. नहीं सर, ये इररेलेवेंट कैसे है? मार्केटेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी सिक्योरिटी का. अगर आपकी सिक्योरिटी मार्केटेबल है तो ऑब्वियसली उस पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एज इन जो रुझाव है आपके बैंक का, वो ज्यादा होगा. बैंक उस सिक्योरिटी को कोलैटरल के फॉर्म में रखना जरूर चाहेगा. सो दैट इज रॉन्ग. A security that is free from third party claims is more effective. बिल्कुल सर, ऐसी सिक्योरिटी जिसपे कोई थर्ड पार्टी का क्लेम नहीं है, जिसपे कोई क्लेम नहीं है, जिसपे आपको कुछ पैसा एग्जिस्टिंग क्लेम्स के रूप में पे बैक नहीं करना, उसका कोलैटरल के फॉर्म में बैंक के लिए एक अच्छा आई वुड से फॉर्मेट माना जाएगा. दैट इज ट्रू. फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज अननेसेसरी इन हाई रिस्क एक्सपोजर. जो आपका फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है वो अननेसेसरी है. नहीं सर, इट इज वेरी नेसेसरी. हाई रिस्क एक्सपोजर के केस में फ्रीक्वेंट वैल्यूएशन एडवाइजेबल है, ताकि आपको पता चलता रहे कब वैल्यू कम हो रही है, सो दैट यू कैन टेक द करेक्टिव मेजर्स. इंश्योरेंस कवर ऑन कोलैटरल enhances the effectiveness of the security. अगर मैं बात करूं
प्रॉपर इंश्योरेंस है, बैंक विद बैंक नेम्ड एज लॉस पेई, अगर बैंक को आपने लॉस पेई बनाया तो ऑब्वियसली बैंक की जो लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी, बैंक के लिए वो एक बेनिफिशियल सिनेरियो होगा। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, A135 आर करेक्ट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्योर्ड लोन वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स है जिनमें जनरली वी कैरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अनसिक्योर्ड। बिल्कुल सर, सिक्योर्ड है तो बैंक को पता है कि यहां से पैसा आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो बैंक ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा, रिटेन करना चाहेगा, तो बैंक उन पे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। दैट इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रैंक लोअर देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन इंसॉल्वेंसी। जो आपका इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन है उसमें जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी मिलती है ओवर दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट दी चार्ज असेट्स। तो उस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सिक्योर्ड लोन्स ऑफन रिक्वायर कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन असेट टाइप, डिपेंडिंग ऑन असेट टाइप। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्योर्ड लोन्स है उनमें हमें अक्सर कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब सिक्योर्ड लेंडिंग जो है इट यूजुअली इन्वॉल्व सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशंस लाइक मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी की जाती है वेयर वी हैव इनमूवेबल प्रॉपर्टी इन चार्ज। सो दैट इज ट्रू। अनसिक्योर्ड लोन्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर सारफेसी एक्ट। नहीं सर, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इसे एप्लीकेबल ही किया गया फॉर ओनली एंड ओनली सिक्योर्ड लोन। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स। Unsecured lenders cannot initiate civil suits for recovery, ये गलत है। Unsecured lenders के अगेंस्ट भी, unsecured lenders के अगेंस्ट भी रिकवरी के लिए सिविल सूट्स यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स, उन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है जिसे बेचकर रिकवरी की जाए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अ मॉर्टगेज कन्वेज और क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेट। तो जो मॉर्टगेज है वो क्या करता है, मॉर्टगेज पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। सो मॉर्टगेज जो है इट कन्वेज एन इंटरेस्ट इन द इनमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। बिल्कुल सर, मॉर्टगेज टर्म ही यूज की जाती है इन केस ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज यूज की जाती है इन केस ऑफ मूवेबल गुड्स, जिसे आप पोजेशन में देते हैं बैंक के पास, प्लेज करते हैं बैंक के पास। हाइपोथिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप्स ऑफ गुड्स टू द लेंडर। हाइपोथिकेशन में एक्चुअली आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बोलना 100% करेक्ट नहीं है। बेसिकली एक ऐसा चार्ज है जहां पर बोरोवर पोजेशन अपने पास रखता है लेकिन लेंडर को ग्रांट देता है ओवर दी मूवेबल एसेट। लेंडर को ग्रांट दी जाती है कि आपके पास ये पावर है कि आप कल को चाहे तो इसे उठाकर ले जाए, इसे बेच सकते हैं, ये पावर आपको दी जाती है। तो उसमें जब आप एक कार का लोन लेते हैं तो हाइपोथिकेटेड बाय सो एंड सो बैंक, इसका मतलब बैंक के पास वो पावर है कि बैंक उसे ले जाएगा और उसे बेच सकता है, लेकिन ओनरशिप जहां ओनर का नेम है वहां पर आप ही का नाम यानी कस्टमर का नाम ही लिखा जाता है। असाइनमेंट कैन ट्रांसफर राइट्स इन रिसीवेबल बुक डेट्स टू द बैंक। बिल्कुल सही है सर, असाइनमेंट में आपने असाइन कर दिया कि जो पैसा मुझे मिलना है वो आप मेरे बैंक को दे देना। दैट इज करेक्ट। लीन ऑलवेज ऑपरेट्स बाय ट्रांसफरिंग लीगल टाइटल टू द लेंडर। नहीं सर, लीन के केस में जो लीगल टेंडर है दैट इज स्टिल विद द बोरोवर। लीगल टेंडर इज स्टिल विद द बोरोवर, बट ये जो लीन आने के बाद आपकी जो असेट है दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफरेबल नहीं बचती। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एज सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज डीड एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर एनफोर्सेबिलिटी अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। सर ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक लैंड को मॉर्टगेज कर रहे हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन आपको registration gives the public notice and enforceability against the third party except where equitable mortgage by deposit is accepted in special form। ठीक है, वो आप याद रखना। दूसरा पॉइंट है टाइटल सर्च इज एसेंशियल बिफोर एक्सेप्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। बिल्कुल सर, टाइटल सर्च
बहुत जरूरी है, आपको चेक करना होगा कि क्या आप ही जो बोरोवर है वही ओनर है या नहीं, क्या उसके ऊपर कोई और सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन चार्जेस ऑलवेज हैव प्रायोरिटी ओवर बैंक मॉर्टगेज। सब प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स लीन एक प्रायोरिटी है आपके, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के लीन की बात करूं वर्सेस बैंक मॉर्टगेज की बात करूं, दैट विल डिपेंड ऑन टाइमिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट ऑलवेज प्रायर। ये डिपेंड करेगा टाइम पे, रजिस्ट्रेशन पे, ये हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं चलता। अ बैंक कैन यूज SARFAESI provisions to enforce its security in immovable property if the borrower defaults and conditions are met। बिल्कुल सही है सर, वर्ड टू वर्ड सही है। हाइपोथिकेशन इज टिपिकल मोड फॉर चार्जिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत हो गया सर। हाइपोथिकेशन तो वैसे भी यूज किया जाता है फॉर मूवेबल, और इनमूवेबल के लिए यूज किया जाता है मॉर्टगेज, तो गलत हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम चले 1 2 4 इज करेक्ट, तो हमारा ए ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। गुड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा सर, पहला पॉइंट है अ बिल ऑफ लेडिंग इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट। ये जो बिल ऑफ लेडिंग है ना, ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइटल इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड होल्डर जो है होल्डर कैन क्लेम द गुड्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाज क्लियर, सही है। दूसरा पॉइंट आता है वेयर हाउस रिसीट्स कॉन्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल एंड कैन बी प्लेज्ड और असाइंड। वेयर हाउस रिसीट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स डिपॉजिटेड एंड दे कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी प्लेज, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट भी सही हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अ कमर्शियल इनवॉइस इज इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड। कमर्शियल इनवॉइस, अगर मैं बात करूं कमर्शियल इनवॉइस की, तो मैं कहूंगा इनवॉइस एविडेंस है सेल का, परचेज का, बट इट इज नॉट इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल enabling डिलीवरी, दैट इज नॉट करेक्ट। चौथा पॉइंट आता है अ कंसाइनमेंट नोट इज नेवर नेगोशिएबल एंड कैन नॉट ऑपरेट एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो कंसाइनमेंट है नोट, जो कंसाइनमेंट नोट है, दे आर जनरली नॉन नेगोशिएबल, बट सम ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कैन कॉन्फर पोजेशन राइट्स। तो स्टेटमेंट में जो नेवर है इट इज टू एब्सोल्यूट, तो नेवर गलत हो गया। समटाइम्स इट इज ट्रू, समटाइम्स इट इज रॉन्ग। लास्ट पॉइंट आता है डॉक वारंट्स और वेयर हाउस वारंट्स आर डॉक्यूमेंट्स। डॉक वारंट्स या वेयर हाउस वारंट्स इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। So dock warrants or warehouse warrants are the documents representing the goods and can be used for pledge or finance। ये करेक्ट है। तो यहां पे हमारा 1 2 5 करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों। ठीक है जी, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर ये क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू in the upcoming examination to answer these questions। तो इनका समझ आना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार सोच लो, देख लो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। अगर इनमें कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर्स। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आज शाम का हमारा 7th क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा कौन कौन इसका करेक्ट आंसर मुझे दे पाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। क्वेश्चन कहता है एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। बैंक नॉर्मली लेंड अगेंस्ट द सरेंडर वैल्यू ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बैंक अक्सर सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करता है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सर। सरेंडर वैल्यू क्या है? इट इज बेसिकली द वैल्यू दैट कैन बी मॉर्टगेज और प्लेज। बैंक लेंड अप टू अ परसेंटेज ऑफ दैट। तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है? ट्रू असाइनमेंट बाय द बोरोवर इन फेवर ऑफ बैंक एन इंटीमेशन। अगर मैं कहूं द पॉलिसी मस्ट बी असाइंड टू द बैंक एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी। तो भैया जो असाइनमेंट है बाय द बोरोवर इन फेवर ऑफ द बैंक एन इंटीमेशन विद द इंश्योरर प्रोटेक्ट्स द सिक्योरिटी और मेक्स द सिक्योरिटी अ परफेक्ट वन, दैट इज ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा पॉइंट है इंटीमेशन। Intimation or notice to the insurer is unnecessary for banks to perfect its charge।
सर इंटीमेशन या इंटीमेटिंग इंश्योरर एंड हैविंग द असाइनमेंट register or recorded is necessary for enforceability. It is not unnecessary point. Loan against policy reduces the sum insured automatically while policy keeps running. तो जो आपका loan against policy है, loan does not automatically reduce sum insured. However, failure to repay can lead bank to enforce assignment and use the proceeds. But इससे जो loan against है वो reduce कर देगा आपके sum insured को, ये सही नहीं है. Interest charge on loans against the insurance policy is typically lower than unsecured one. हाँ, क्योंकि अगर आपने इंश्योर्ड पॉलिसी दी तो इट्स सिक्योर्ड लोन हो गया ना. सिक्योर्ड लोन में आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा इन कंपैरिजन टू द अनसिक्योर्ड लोन. पढ़ चुके हैं हम, पता है हमें. दैट इज करेक्ट. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. द 8th क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. 8th क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन कह रहा है सर, एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स आर टिपिकली ग्रांटेड बाय टेकिंग शेयर्स एज प्लेज. शेयर्स आर जनरली टेकन एज प्लेज इन अ डीमैट एनवायरनमेंट. प्लेजिंग इज डन थ्रू डिपॉजिटरी. तो आज की डेट में जो प्लेजिंग है वो की जाती है थ्रू द डिपॉजिटरी. बट अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं, हाँ जी सर, प्लेजिंग होनी जरूरी है शेयर के केस में. दैट इज ट्रू. अगला पॉइंट आता है, लेंडर्स रिक्वायर पीरियोडिक मार्क टू मार्केट मार्जिन मेंटेनेंस ऑन लोन अगेंस्ट शेयर्स. मार्केट वॉलिटिलिटी रिक्वायर करेगी आपको रेगुलर मार्क टू मार्केट चेक्स. शॉर्टफॉल्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करेंगे कि भैया आपको मार्जिन चाहिए. दैट इज ट्रू. तीसरा पॉइंट है, टेकिंग शेयर्स एज कोलैटरल ट्रांसफर द लीगल ओनरशिप ऑफ द शेयर्स टू द बैंक. नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Pledge does not transfer the ownership, it just transfer the possession. अगला पॉइंट है, rights and dividend acquiring on pledged shares may require lender consent or arrangement to ensure payments are credited appropriately. बिल्कुल सर, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो पैसा कस्टमर को ही जाता रहेगा, वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. भले आप उसके पास उसका पोजेशन है, लेकिन ओनर आज भी कौन है, आपका बोरोवर है. ठीक है. अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट, डीमेटेरियलाइज शेयर्स कैन बी प्लेज वाया डिपॉजिटरी इन ई फॉर्म. बिल्कुल सर, डीमेटेरियलाइज शेयर्स जो है आप उन्हें प्लेज कर सकते हैं. इवन ये जो आपकी डीमेटेरियलाइज शेयर्स है उन्हें आप प्लेज आज की डेट में कर सकते हैं टू द स्टॉक ब्रोकर्स एज वेल. अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर ट्रांजेक्शन्स के लिए मार्जिन के रूप में अगर आप रखना चाहते हैं, मार्जिन के रूप में अगर आप पैसे की जगह शेयर्स रखना चाहते हैं, वो भी अलाउड है. लेकिन वो भी किसके थ्रू होगा सर, दैट विल ऑल्सो डन थ्रू दी that will be also done through the that will also be done through what sir, that will also be done through your depository only. पहले तो आप डायरेक्टली प्लेज करते थे अपने शेयर्स विद द स्टॉक ब्रोकर्स, लेकिन अब ड्यू टू द मिसयूज ऑफ द एसेट्स अब ये भी सेबी ने चेंज कर दिया. लेटेस्ट गाइडलाइन है सेबी की, ये भी आप ध्यान रखिएगा. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एडवांसेस अगेंस्ट डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कैन बी असाइंड और डिपॉजिटेड एज अ सिक्योरिटी टू बैंक. सर, जो डिबेंचर्स है क्या उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल है, उन्हें आप असाइन कर सकते हैं या उसका असाइनमेंट ऑफ टाइटल या ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर सकते हैं बड़ी इजीली. दैट इज ट्रू. सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स क्लेम ओवर द चार्ज असेट्स पर डिबेंचर सिक्योरिटी रैंकिंग. बिल्कुल सही है सर. सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स, उनके पास क्लेम है as per the ranking defined in the charge document. Convertible debentures complicate valuation because conversion rights change the instrument's nature. बिल्कुल सही है. जो convertibility है that adds equity feature, उससे जो valuation है, जो valuation must factor expected conversion है या dilution है या फिर marketability है, that is going to be impacted. That is true. Coupon earned on pledged debentures is automatically payable to the bank. ना sir, it will be payable to the ओनर. अगर ओनर कहे बैंक को दे दो तो दे देंगे. रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑलवेज मैच्योर बिफोर टर्म लोन्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये कोई रूल तो नहीं है, ये तो कोई रूल नहीं है ना. मैच्योरिटी डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. रिडीमेबल डिबेंचर्स नीड नॉट ऑलवेज मैच्योर बिफोर द टर्म लोन्स. दैट इज नॉट ट्रू. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिएगा. लोन अगेंस्ट बुक डेट्स. लोन अगेंस्ट बुक डेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर. पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, पढ़िए आप एक बार इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर
स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाए। तो आई गेस शायद यही बेनिफिट है इस सीरीज का, जिसमें मैं आपको कहीं ना कहीं उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल करना बता रहा हूँ कि आप कैसे उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देखिए जरा, फिर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और सॉल्व भी करूंगा। गिव अ रीडिंग। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए इस क्वेश्चन को। बुक डेट्स कैन बी असाइन्ड बाय वे ऑफ असाइनमेंट टू द बैंक एज सिक्योरिटी। कैन बी असाइन्ड एज अ वे ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज बिल्कुल करेक्ट है सर। असाइनमेंट ट्रांसफर राइट्स इन रिसीवेबल्स टू द असाइनी, बिल्कुल सही है। बैंक ऑफन प्रेफर हाइपोथिकेशन बिकॉज असाइनमेंट रिक्वायर नोटिस विच में अफेक्ट द ट्रेड। सर बैंक जो है ज्यादातर हाइपोथिकेशन करता है। हाइपोथिकेशन के केस में नोटिफाइंग डेटर्स के लिए जो नोटिस चाहिए, जिसमें आप नोटिफाई करेंगे डेटर को, वो अवॉइड किया जाता है। असाइनमेंट ऑफन रिक्वायर्स द नोटिस, कंसेंट एंड इट मे ऑल्सो अफेक्ट द सेलर बायर रिलेशंस, सो दिस इज ट्रू। Aging, schedule and historical realization performance are key for assessing the security quality. Sir, aging का मतलब how old the receivables are and collection history वो determine करेगा कि कितना reliable है, reliable है कि आप इस पे rely करके borrowing, lending कर सकते हैं। Assignment with recurs to the assigner transfer all credit risk to the banker. Sir, assignment with recurs means assigner remains liable if receivables are not realized. So credit risks always stay with the assigner, not with the bank. Assignment without recurs would transfer the risk to the assignee. So that is a point. लेकिन with recurs में अगर आप assign कर रहे हैं तो वो risk आपके ऊपर ही रहेगा। Invoice older than 180 days are generally preferred as prime security for fresh advances. So old invoices की अगर मैं बात करूं, which is of greater than 90 or 180 days, are poor security because इस केस में realization से जो profitability है और realize होने की जो probability है वो कम हो जाती है। So in that particular case, this is wrong. Invoice older than 180 days are generally preferred. No sir, they are not preferred. So answer is going to be what sir? Answer is going to be A option. That is correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, loan against term deposits. Term deposits remain the property of depositor, but bank takes lien for the loan. बिल्कुल सही है सर। Depositor जो है it remains with the owner. Depositor remains owner. Bank creates lien or charge as security. Owner आज भी आपका borrower ही है। Banks typically lend a high percentage of deposit value. इस केस में अगर मैं बात करूं, loan against term deposit are typically available अप टू हाई परसेंटेज 90 to 95% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर इसका जो रिटर्न है वो शॉर्ट है, वैल्यूएशन शॉर्ट है। आज आपकी एफडी 5 लाख की है, 3 साल के बाद 7 लाख की होगी, उसमें कोई चिंता ही नहीं है, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। थर्ड, बैंक्स कैन एप्रोप्रिएट द टर्म डिपॉजिट टू रिकवर द लोन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ कोर्ट। नहीं सर, बैंक जो है दे कैन एप्रोप्रिएट प्लेज्ड और चार्ज टर्म डिपॉजिट आफ्टर एप्रोप्रिएट नोटिसेस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। उसमें कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक अपने आप वहां से पैसा रिकवर कर सकता है। सच लोन्स दे अट्रैक्ट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अनसिक्योर्ड। बिल्कुल सर, अगर सिक्योर्ड है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट नीड नॉट बी accompanied by separate independent valuation of security। बिल्कुल सही है, इसमें नो एक्सटर्नल वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फेस वैल्यू या फिर एक्वर्ड इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट पहले से नोन है, तो उसमें सिक्योरिटी वैल्यू क्लियर है, तो उसमें वैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इस पे आरबीआई ने रिसेंटली कुछ चेंजेस भी किए हैं, कुछ रिविजन्स भी किए हैं। अगर आपका लोन वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में लोन टू वैल्यू रेशो, 2.5 लाख से कम है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 85%, 2.5 से 5 है तो 80%, 5 से ज्यादा है तो 75%। तो ये नई कंडीशंस इंट्रोड्यूस की गई हैं। उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि कितना मैक्सिमम लोन बोरो कर सकते हैं अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो सारी बातें रिसेंटली आरबीआई ने एक सर्कुलर पास किया था और वो सर्कुलर मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कीजिएगा इसी चैनल पे। गोल्ड लोन्स रिक्वायर फिजिकल डिलीवरी प्लेज ऑफ ऑर्नामेंट्स टू द लेंडर। बिल्कुल सही है सर, गोल्ड लोन के केस में तो आपको देना ही पड़ेगा ना गोल्ड, तभी बात बनेगी। वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वेट, प्योरिटी,
प्रिवेलिंग मार्केट गोल्ड रेट, मेकिंग चार्जेस आर एक्सक्लूडेड। हाँ बिल्कुल सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू वेट को इंक्लूड किया जाता है, नथिंग एल्स। लोन टू वैल्यू, lending loan to value is computed on gross purchase value? नहीं sir, it is computed on actual, it is computed on actual value। मतलब प्योर गोल्ड वैल्यू कितनी, उसके बेसिस पे आपकी लोन टू वैल्यू डिसाइड होगी। मतलब अगर आपने कहा ये 9 लाख का हार है, आपने दिया, बैंक ने देखा कि इसमें गोल्ड तो 7 लाख का ही है, तो आपका जो वैल्यू डिसाइड होगा, लोन वैल्यू, इस 7 लाख पे डिसाइड होगा, ना कि 9 लाख पे। गोल्ड लोन्स आर शॉर्ट टेन्योर एंड टिपिकली प्राइस्ड at floating or variable rates। gold loan short tenure है, few weeks या few months, and generally उन्हें floating basis पे ही price किया जाता है, that is true। pledge of gold requires registration under registration act for validity? नहीं sir, pledge does not typically require registration under registration act, and these rules, they are not applicable to movable in the same manners as they are applicable in case of the immovable assets. So this is wrong. So answer to this particular question would be 1, 2 and 4. So A option is the correct answer. A option is the correct answer. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया। Shall we move on to the next question? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर दीजिएगा, so that I can move ahead। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Supply bills or bill discounting. A supply bill is typically a bill of exchange drawn by supplier on the buyer and accepted by the buyer। बिल्कुल सही है सर, commercial supply bills are the bills of exchange जो कि drawn and accepted है in the trade, that is true। Bank discount supply bills, bank discount supply bills after verifying acceptance और endorsement and shipment or delivery documents। ये बिल्कुल सही है सर, बैंक पहले वेरीफाई करेगा कि क्या आपके रिसीवर ने, जिसने आपसे सप्लाई ली है, क्या उसने उसे एक्सेप्ट किया, क्या जो सप्लाई के लिए उसने आपको वो बिल दिया, क्या वो सप्लाई उस तक पहुंच चुकी है, तब जाकर वो डिस्काउंटिंग होगी, तब जाकर पेमेंट होगी, दैट इज करेक्ट। अगला पॉइंट क्या कहता है? डिस्काउंटिंग अ बिल ऑलवेज नॉन रिकर्स फाइनेंसिंग फॉर द बैंक? नहीं सर, डिस्काउंटिंग मे बी विद और विदाउट रिकर्स depending on the arrangement, not always recourse, that is correct। An unpaid bill that is dishonored becomes a contested debt requiring additional recovery steps। बिल्कुल सही है सर, अगर dishonor हो जाता आपका बिल तो ये एक क्रिएट करेगा एक formal default requiring collection suits or appropriate recovery, that is true। Clean invoice without acceptance are treated identically to accepted bills for discounting? नहीं सर, accepted bills have higher credit worthiness than simple invoices, so banks treat them differently, they are not treated same। So answer to this particular question is A option। 1 to 4 are correct, but the next statement is wrong। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया। Shall we move ahead? Shall we move ahead? I hope you all are ready। Let's move on to the next 14th question of the day। आज का जो हमारा 14th question है वो क्या कहता है? व्हीकल फाइनेंस। व्हीकल्स आर टिपिकली सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल। बिल्कुल सही है सर, मूवेबल एसेट है, हाइपोथिकेशन है, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मस्ट ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द बैंक इमीडिएटली एट सैंक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं। आरसी इज टिपिकली एंडोस्ड और अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट फाइनेंसर्स इंटरेस्ट। इमीडिएट ट्रांसफर मे नॉट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, बट हाइपोथिकेशन एंडोर्समेंट इज रिकॉर्डेड, वो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है EMIs comprise principal and interest, प्रीपेमेंट में अट्रैक्ट चार्जेस एज पर दी प्रोडक्ट टर्म। बिल्कुल सर, लेकिन अभी आरबीआई ने हाल ही में बताया कि अगर आपने फ्लोटिंग लोन लिया है बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, फ्लोटिंग लोन लिया इंडिविजुअल ने फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उस केस में प्रीपेमेंट के केस में कोई पेनल्टी नहीं है। अगर फ्लोटिंग लोन लिया बिजनेस पर्पस के केस में इंडिविजुअल ने तो भी कोई पेनल्टी नहीं है इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, बट इन केस ऑफ RRBs रीजन रूरल बैंक्स पेनल्टी होगी अगर लोन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा, लेकिन रीजन बिहाइंड बोरोइंग इज बिजनेस। अगला पॉइंट है लेंडर्स यूजुअली इंसिस्ट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस विद बैंक्स इंटरेस्ट एंड एंडोर्समेंट नोटेड। बिल्कुल सर, बैंक चाहता है कि भैया अपनी एसेट को इंश्योर करा लो और मुझे एंडोर्समेंट मुझे दे दो, ताकि कल को कोई लॉस होगा तो मुझे वहां से पैसा मिल जाएगा। For a bank may take repossession and sell the vehicle under SARFAESI Act। बिल्कुल सर,
सारफेसी एक्ट के तहत विच इज वैलिड ऑन सिक्योर्ड लोन, दैट इज ट्रू कि भैया पहले आप उसका पोजेशन लेंगे, पोजेशन लेने के बाद उसे ऑक्शन के जरिए बेच देंगे. नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द 15th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग. 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सॉरी एक सेकेंड, क्या हुआ, 1 second guys. हाँ जी, मूविंग ऑन टू दी 15th क्वेश्चन. ये रहा आपका 15th क्वेश्चन. डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी. मॉर्टगेज इज यूज्ड टू क्रिएट सिक्योरिटी ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही है सर. Hypothecation is preferred mode to charge movable goods. बिल्कुल सही. Pledge requires delivery of the goods pledging. That is true. Assignment transfer the rights and can be used as a charge. बिल्कुल सही. A lien transfer the legal ownership. ना सर, इसमें कोई legal ownership transfer नहीं की जाती. सिर्फ और सिर्फ आपको कैपेसिटी दी जाती है टू रिकवर योर फंड्स, या ये कह लो कि आपकी एसेट को फ्यूचर में ट्रांसफरेबल होने से रोका जाता है, एनकैश करने से रोका जाता है इफ द लीन इज अप्लाइड. रिमेंबर दैट. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. इजी था. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बेलमेंट. Essential elements of a valid contract include offer, acceptance, consideration, capacity, free consent, as well as lawful object. बिल्कुल सही है सर. They are the classical essentials for a valid document. बिल्कुल सही. An agency relationship require consent of principal and agent and involving agent acting on principal's behalf. Agency requires mutual consent, है ना. Agent act in principal's name for the principal's account. बिल्कुल सही है. अगला बेलमेंट. मेरे से अगर पूछोगे तो बेलमेंट is equals to possession without transfer of title. So bailment involves delivery of goods to another without transfer of ownership. True. Agency must always be evidenced in writing to be a valid. Sir, agency may be oral or implied. Only certain agency types like power of attorney for certain transactions, they are required in writing. All are not required in writing. Bailment automatically gives ownership rights to the belly over goods. ना सर, bailment के केस में आपको, अगर आप belly है as a bank, आपको ownership rights नहीं मिलती. Remember that. So answer is going to be A option. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया. चलिए मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन भी. वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है एग्जामिनेशन में. देखना जरा क्या कहता है. Types of charges and registration. Fixed charge attaches to a specific asset and does not allow the borrower freedom to deal with the asset. बिल्कुल सही है सर. Fixed charge attach होता है to a identified asset. Borrower ability to deal with it is restricted. Floating charge hovers over changing assets and crystallizes on specific events. Floating charge जो है it covers assets that change in ordinary course of business until crystallization. That is true. Companies are required to register charges created in favor of lenders with the register of company within a statutory period, commonly 30 days from creation. Absolutely sahi hai. Companies, they must register charges with ROC with the statutory time frame. फेलियर के केस में आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी, याद रखना. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑप्शनल है? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑप्शनल नहीं है फॉर प्राइवेट कंपनीज. अगला पॉइंट है द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज द अथॉरिटी वेयर चार्जेस आर रजिस्टर्ड, नॉट आरबीआई. सर अगर मैं कहूं कि वर्डिंग थोड़ी गलत है. वर्डिंग क्या है? आरओसी इज द अथॉरिटी फॉर चार्ज रजिस्ट्रेशन. तो जो स्टेटमेंट है दैट वाज फ्रेम्ड एज not RBI. So the primary point is that ROC handles charge registration, but since option 5 is ambiguous, so I'll not go with 5, क्योंकि registration of company is the authority where charges are registered, not RBI. अगर ऐसा होता तो मैं सही मान लेता 100%, वरना अभी मैं थोड़ा डाउटफुल हूं. So I'll go with A option 1, 2, 3. ठीक है जी, moving on to the next one. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 18th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग. अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में भी. लेट्स सी क्या लेकर आता है क्वेश्चन हमारे लिए.
ये क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन टाइप्स एंड प्रोसीजर्स पे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। टिपिकल वर्ड ही टिपिकल आ गया। टिपिकल लोन डॉक्यूमेंट इंक्लूड सैंक्शन लेटर्स, लोन अरेंजमेंट्स, लोन अग्रीमेंट्स, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, गारंटी, टाइटल रिपोर्ट्स एंड केवाईसी रिकॉर्ड्स। वर्ड टू वर्ड सही है सर, यही होता है। स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज मस्ट ऑलवेज बी कंप्लीटेड बिफोर एनी डिस्पर्समेंट विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल ट्रू है सर, बिल्कुल ट्रू है, नहीं सर ये गलत है। स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज आर एसेंशियल फॉर लीगल एनफोर्सेबिलिटी, स्पेशली मॉर्टगेज के केसेस में। इन सम केसेस बैंक्स दे मे डिसबर्स subjects to condition, for example pending registration under the strict safeguard. So always is not true term, always गलत हो गया। may आता, must आता तो भी ठीक था, must always तो गलत हो गया। KYC and anti money laundering ड्यू डिलीजेंस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर सैंक्शनिंग। बिल्कुल सर, जब लोन ही दे दिया फिर चेक करने का क्या फायदा। इंडिपेंडेंट and recent valuation of security must be carried out, that is true, and that too by the empaneled valuator as per RBI. Documentation, once executed loan documentation never requires periodic review. गलत है सर, डॉक्यूमेंट्स को periodically review किया जाता है। It is not the case कि लोन दे दिया कहानी खत्म, ऐसा नहीं है, इसे periodically review किया जाता है। Do remember that, it is a very important aspect which you must know. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसे समझते हैं जरा। अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट टॉपिक है, दैट इज एनपीए, एग्जामिनर का भी फेवरेट है। एन एसेट बिकम्स एनपीए व्हेन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। बिल्कुल सही। ऑन क्लासिफिकेशन एज एनपीए बैंक मस्ट स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग इंटरेस्ट ऑन एक्यूरल बेसिस एंड ट्रांसफर अनपेड इंटरेस्ट टू अ सस्पेंस, अनपेड इंटरेस्ट टू अ सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल सही है सर। Gross NPA equals the outstanding principal plus overdue interest in the account classified as NPA. बिल्कुल सही है। Gross NPA is the aggregate outstanding that is classified as NPA. Net NPA क्या है? Gross NPA में से जब आप provisioning को minus कर देते हैं then we get net NPA, तो ये भी सही हो गया। Return of an NPA removes borrower liability. ना, borrower की liability नहीं remove होती, बैंक ने अपने asset book से, अपनी बैलेंस शीट से उसे हटा दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। कहीं का प्रॉफिट कहीं की एसेट को या उस एनपीए को हटाने में यूटिलाइज कर लिया, बट लाइबिलिटी तो अभी भी बोरोवर की है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, दैट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग गाइस, देखते हैं क्या कहता है ये लास्ट क्वेश्चन हमें। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है सर कि असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एंड रेजोल्यूशन। अ सबस्टैंडर्ड एसेट इज द वन व्हिच रिमेन्स एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स। बिल्कुल सही है। एनपीए के जस्ट अगले दिन सबस्टैंडर्ड टर्म आ जाती है फॉर 12 मंथ्स। डाउटफुल एसेट इज वन व्हिच हैज रिमेन्ड इन सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बिल्कुल सही है। लॉस asset is one where the asset is considered uncollectible and require full provisioning or write off। बिल्कुल ठीक। और ये अनकलेक्टेबल है, ये कौन बताएगा सर? या तो ये बैंक का इंटरनल ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर बताएगा। एनी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अकाउंट ऑटोमेटिकली प्रिवेंट्स क्लासिफिकेशन एज एनपीए। ये गलत है सर, ये गलत है, ये गलत है। रीस्ट्रक्चरिंग मे और मे नॉट क्योर एनपीए स्टेटस। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स डिफाइन द कंडीशंस फॉर मेंटेनिंग और upgrading the classification. Restructuring does not automatically remove the NPA tag. Effective resolution needs granular data, early warning signals and an action plan for workout or legal remedies। बिल्कुल सही है सर। सो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन 1 2 3 5 आर करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप एक एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिखिएगा। और इस क्लास के बाद जब आप इस सेशन को रिकॉर्डिंग में देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड, या अगर आप लाइव भी देख रहे हैं तो भी मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। I'll not take much time of yours. Let's revise it quickly. Under the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institution Act 1993, पहला point, the act provides for constitution of debt
Recovery Tribunal, which are 39 in India, and Debt Recovery Appellate Tribunal, which are 5 in India. Check this and give me in the comment section that whether this 39 and 5 figures are correct or not. The act applies only to the recovery of dues from corporate debtors and not to individuals. That is wrong. So it applies to everyone. Next is bank and financial institutions can file applications to DRT for recovery. That is true. DRT possesses certain powers of civil court. बिल्कुल सही है. Decision of DRT is not final. It can be challenged in front of DRAT. So answer क्या बनेगा? So 134 B option is the correct answer. अगला question देखो. Regarding the SARFAESI Act, select the correct statement. SARFAESI empowers secured creditors to take possession of the secured asset and sell them without court intervention. बिल्कुल सर, इसीलिए तो SARFAESI आया था कि कोर्ट का इंटरवेंशन खत्म किया जाए. SARFAESI applies only to the creditors who are banks and exclude registered NBFCs. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. It is applicable in general. SARFAESI can be invoked for enforcement only after borrower has committed a default. SARFAESI तभी लगेगा हाँ जब आपका बोरो डिफॉल्ट करेगा. ट्रू है. एक्ट में नोटिस देना होगा आपके कस्टमर को, 60 दिन का वेट करना होगा. 60 दिन में अगर कस्टमर वापस आता है बैंक के पास तो ठीक, वरना यू विल स्टार्ट दी प्रोसेस ऑफ रिकवरी. बोरोवर्स एग्रीव्ड बाय एक्शन अंडर SARFAESI मस्ट फर्स्ट अप्रोच सिविल कोर्ट. नहीं सर, borrowers aggrieved by actions under SARFAESI must approach civil court. नहीं, that is not correct. It will approach to DRT, है ना. DRT या DRT पे जाएंगे ना कि सिविल कोर्ट पे. आंसर इज 134. अगला क्वेश्चन देखो. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करें तो दिस कोड प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन एजुकेटिंग अथॉरिटी. दैट इज करेक्ट. आपकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द एजुकेटिंग अथॉरिटी. दैट इज करेक्ट. अ मॉरेटोरियम अंडर IBC सस्पेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ ऑल जजमेंट्स इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस. दिस इज रॉन्ग. ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. द कमेटी ऑफ क्रेडिटर एक्सरसाइजेस प्राइमरी कमर्शियल डिसीजंस मेकिंग इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. ये सही है. लास्ट पॉइंट आता है, इफ नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन द कॉर्पोरेट डेटर प्रोसीड्स टू लिक्विडेशन. ये करेक्ट है. IBC applies only to corporate bodies. No sir, it applies to partnership, limited partnership liabilities as well. So answer is going to be 134. B option is the correct answer. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 रिलेटेड मैकेनिज्म. अगर हम बात करें तो क्या मैकेनिज्म है? The act provides free legal services to eligible persons including the weak and disadvantaged. तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज. दैट इज ट्रू. द एक्ट एम्फेसाइजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत्स एंड देयर अवार्ड्स आर फाइन. नहीं सर, लोक अदालत के अवार्ड्स फाइनल एंड बाइंडिंग है. ये सही है. दैट इज करेक्ट. द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट लॉयर्स. नहीं सर, जो एम्पैनल्ड प्राइवेट एडवोकेट्स है दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल. स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट. दिस इज करेक्ट. Legal aid under the act is limited to criminal defense only. नहीं sir, it is allowed for the civil defense also. So if it is allowed under the civil defense, so this statement is wrong. So this statement is wrong. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 124. A option is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो. Principles under the law of limitation. A written acknowledgement of liability resets the limitation period for debt. तो ये जो आपका written acknowledgement है of liability, उससे क्या होगा? आपका जो limitation period है for a debt that will reset. ये बिल्कुल ठीक है. Limitation for an action founded on a contract begins when contract is made irrespective of the breach. This is wrong. Irrespective of the breach नहीं sir, contract begin होगा नहीं, जब breach होगा तब. For tort claims, limitation runs from the date when the tort was committed. ये सही है point. अगला point है court can freely extend the statutory period of limitation in ordinary suits. No, this is not allowed. Part payment of a debt resets the limitation period for recovery of debt. ये सही है. Part payment of debt restarts the limitation period for the recovery of that debt. ये सही है. So answer क्या बनेगा सर? 135 is the correct answer. अगला question देखो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब इंडेमनिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें, पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. दैट इज इंडेमनीफाइड. करेक्ट.
indemnity holder may recover from indemnifier losses caused by act of third party as long as loss is within the indemnity scope. ये भी सही है. And indemnity must always be in the written, is always be in writing to be enforceable. अगर हम इंडेमनिटी की बात करें सर, ये रिटर्न में होगा तो बेटर है, लेकिन ओरल भी मान्यता रखी जाती है. सो दिस इज नॉट 100% करेक्ट. Implied indemnity arises, for example, when an agent act on the behalf of principal. बिल्कुल सही है, तब उसे implied indemnity कहा जाता है. Contract of indemnity are frequently used by banks to cover losses from the third party claims. ये सही है. So आंसर क्या बनेगा सर? 1, 2, 4, 5. That is B statement is correct. अगला क्वेश्चन देखो. Contract of guarantee. Parties are general, principal, debtor, creditor and surety. guarantee में 3 parties involve होती है, तीनों बिल्कुल ठीक है. Consideration is necessary for a valid guarantee. बिल्कुल सर, उसके बिना valid मानी नहीं जाएगी. Surety's liability is coexistence with the principal debtor unless expressly limited. बिल्कुल सही. Continuing guarantee can be revoked by surety by giving notice to the creditor for future transaction. बिल्कुल सही है, आप इसे revoke कर सकते हैं. Debt of the surety automatically extinguishes all the past liabilities. No sir, that is not correct. Answer is going to be 1, 2, 3, 4. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ श्योरिटी एंड इम्प्लीकेशन. पहला पॉइंट क्या कहता है? इफ क्रेडिटर रिफ्रेन्स फ्रॉम सुइंग प्रिंसिपल डेटर विदाउट surety's consent, the surety is discharged. If the creditor remains, or if the creditor refrains from suing principal debtor without surety's consent, the surety is discharged. ये बिल्कुल सही है. Surety has a right to have securities held by creditor applied first before calling upon surety. That is also correct. बिल्कुल सही है, word by word. Variation of the terms of principal contract without surety consent discharge the surety. This is correct. The principal debtor has an implied promise to indemnify the surety when surety pays the creditor. This is also correct. अगला पॉइंट क्या कहता है? Misrepresentation by creditor to the surety about the debtor's solvency never affect the surety liability. गलत है सर, surety की liability तो affect होगी. This is wrong. Remember that. Moving on to the next one. Bank guarantees and bank's obligations. Bank guarantee is generally independent of underlying contract between applicant and beneficiary. That is principle of independence. बिल्कुल सही है सर. Issuing bank must take usual precautions, correct beneficiary name, clear terms, expiry date. बिल्कुल सही है. On presentation of a confirming demand, bank should not dispute the underlying commercial transaction between the applicant and beneficiary. This is correct. The bank must investigate and verify the underlying performance of the principal prior to making payments under a simple demand guarantee. ये point गलत है. Bank guarantee are generally disclosed or treated as contingent liability. सही है. So answer is going to be 1, 2, 3, 5. D option is correct. Last question of the evening, letter of credit. Letter of credit एक separate contract of payment है between issuing bank and beneficiary, independent of the sales contract. It is independent of the sales contract. बिल्कुल सही है. Common letter of credit parties include applicant, beneficiary, issuing bank, advising bank. बिल्कुल ठीक है, कोई problem नहीं है. Under UCP 600, banks examine documents, not goods. Bank examine documents, not goods. हाँ, goods को तो नहीं examine किया जाता. Banks are concerned with performance of seller before honoring and letter of credit. Before honoring a letter of credit, banks are concerned with the performance. Quality से कोई मतलब नहीं है. Quality bank will not check. A confirmed letter of credit carries an additional bank underwriting to pay in addition to the issuing bank obligation. That is correct. So these are the 10 questions. Actually, I have to solve undoubtedly 20 questions. लेकिन I have a next class at 9:30. उस वजह से ये क्लास थोड़ी डिले हो गई क्योंकि पिछली क्लास में था. It was a mismatch because of me, but don't worry, जो रिकॉर्डिंग में दूंगा उसमें आपको मैं 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा so that the things are clear to you. ठीक है जी. So don't worry, I'll cope up with the compensation. लेकिन अभी के लिए माफी चाहूंगा. लेकिन जाने से पहले अगर आप चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड करना, it will be any further delay. Here we go with the first question of this session, and the first question is now on your screen. Let's get started. The first question says, please pay attention. It's a question related to
deferred payment guarantee. Deferred payment guarantee means basically deferred payment is something where you are making the payment in the near future. Maybe you are liable today, but the payment will be done in the near future as per the decided date or as per the contract. So a deferred payment guarantee assures payment at a future date in respect of a contractual obligation. So if you are giving a guarantee, that is basically giving an assurance that the funds will be paid, आपको पैसा मिल जाएगा as per the obligations. दूसरा पॉइंट है यहाँ पर DPG is often used in trade finance where payment is due after shipment and acceptance. बिल्कुल सही है सर, ये जो DPG है ये जनरली वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर यू आर मेकिंग अ ट्रेड और जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स शिप हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, तब जाकर वो पेमेंट की जाती है. अ DPG makes the guarantor liable only if court adjudicates default, presentation to bank is not sufficient. ये बिल्कुल गलत है. This is absolutely wrong. This is not a correct answer for the same. क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखें, ऐसा नहीं है कि पहले जब आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, जब आपको कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी या उस सिनेरियो में ही इसे एक्सरसाइज किया जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट विल बी एक्सरसाइज्ड एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स, एज पर द बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है जी. चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर. अगले पॉइंट की ओर. अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए. द मेथड ऑफ पेमेंट इन DPG may involve acceptance, negotiation or payment. That is true. DPG is equivalent to a confirmed letter of credit in all respect. नहीं sir, it is not same. So answer is going to be 1, 2, 4. ठीक है जी. क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझ आया. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. अगला क्वेश्चन कहता है बिल फाइनेंस एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. बिल फाइनेंस एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने. You have 5 statements. Go through with the 5 statements and then give me the answer. कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी. तो अगर हम इनकी स्टेटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्टेटमेंट को पहले समझना जरूरी है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे. तो लेट्स रीड आउट. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहली स्टेटमेंट को. तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, 1 सेकेंड. हाँ जी. तो हमारी पहली स्टेटमेंट कहती है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स आर गवर्न्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दे आर कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. सेकंड स्टेटमेंट सेज डिस्काउंटिंग अ बिल बाय अ बैंक इज द सेम एज प्लेजिंग द बिल इन सिक्योरिटी. नहीं सर, डिस्काउंटिंग अलग है लेकिन प्लेजिंग इज डिफरेंट. प्लेजिंग के केस में क्या है, यू आर कीपिंग द बिल एज अ सिक्योरिटी, बट डिस्काउंटिंग का मतलब आपने बेच दिया बिल. अब आप जानो, मतलब बैंक जो बायर है जो डिस्काउंट कर रहा है वो जाने उसकी रिकवरी के बारे में, आपने अपना बिल डिस्काउंट कर दिया. टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस इंक्लूड बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, इनवॉइस फाइनेंसिंग. यस, ये सारा का सारा जो है दिस इज अ मेथड ऑफ बिल फाइनेंस ओनली. नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक ऑब्टेनिंग अ बिल इन द कोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग टेक राइट्स टू प्रेजेंटमेंट एंड रिकर्स टू अ ड्रॉअर और एंड्रोसर ऑन डिसऑनर. ये बिल्कुल सही है. बैंक जब ऑब्टेन करता है बिल इन कोर्स ऑफ डिस्काउंटिंग, उस केस में बैंक ले सकता है ये राइट प्रेजेंटमेंट के समय, रिकर्स के समय, कि भैया रिकवरी कौन करके देगा, बैंक खुद से करेगा या फिर जिसने ये बिल बेचा वो रिकवरी करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक. बोथ द कंडीशंस कैन बी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट. डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सटिंग्विशेस बैंक्स राइट टू रिकर्स अगेंस्ट द ड्रॉअर. नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. That is absolutely wrong. Dishonor does not extinguishes banks recurs. It activates banks recurs rather, जिसके तहत बैंक अपनी राइट्स के तहत ड्रॉअर या एंडोसर से अपने फंड्स को रिकवर करेगा. सो दिस इज रॉन्ग. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन 1, 3, 4. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. क्रेडिट कार्ड लीगल एंड ऑपरेशनल फीचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इशूइंग बैंक्स are the primary liable to honor valid card transactions up to the sanction limit. बिल्कुल जो इशू करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट इज करेक्ट. Issuers may pass merchant disputes back to the card holders only after handling chargeback procedure. अगर merchant disputes है उसे बैंक प्रोसेस करेगा via chargeback attributions as per rules. That is correct. Card holder is automatically liable for all unauthorized transactions irrespective of reporting. No sir, this is wrong.
कार्ड होल्डर मे एस्केप लायबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन इफ आपने उसको रिपोर्ट किया टाइमली एंड इशूअर ने कंट्रोल ले लिया, या फिर ये कहोगे इशूअर्स control are in place, not automatic liability is arranged, so that is not correct. RBI expects two-factor authentication and other risk controls in the card transaction. ये बिल्कुल सही है, टू फैक्टर पे तो अभी RBI ने रिसेंटली भी फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन में दो फैक्टर्स पे बात की है, जिसमें RBI ने कहा कि एक डायनामिक होना चाहिए, one could be static which is with you, that could be your password, that could be your biometric features, and other one is dynamic, that could be OTP or something similar to the format of dynamic scenarios. तो उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? Chargeback is a mechanism where the issuer recovers funds फ्रॉम द मर्चेंट एक्वायरर ऑन अ वैलिड डिस्प्यूट। ये बिल्कुल ठीक है, चार्जबैक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो इशूअर है वो रिकवर करेगा फंड्स फ्रॉम द मर्चेंट। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा 1, 2, 4, 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होम लोन्स एंड पर्सनल लोन्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला पॉइंट कहता है होम लोन्स आर टिपिकली सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेजेस एंड रिक्वायर प्रॉपर स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन एज पर लोकल लॉ, तभी आपका मॉर्टगेज वैलिड माना जाएगा। हाइपोथिकेशन इज टिपिकल सिक्योरिटी फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस इज रॉन्ग। सारफेसी रेमेडीज कैन इन्वोक्ड बाय सिक्योर्ड लेंडर्स टू रिकवर ड्यूज अगेंस्ट द मॉर्टगेज। बिल्कुल से सारफेसी एक्ट सिक्योर्ड लोन पे वैलिड है। अब वो सिक्योर्ड लोन के केस में आपका मोड ऑफ चार्ज क्या है, दैट डजंट मैटर, हर एक केस में दैट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज अ बैंक मस्ट ऑलवेज ऑब्टेन कोर्ट डिक्री बिफोर सीजिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है, पहले था, लेकिन अब सारफेसी के तहत यू कैन इशू अ नोटिस टू दी बोरोवर डायरेक्टली। 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में बोरोवर वापस आया, सेटलमेंट हुआ तो ठीक, वरना नहीं। डायरेक्टली बैंक कैन कम एंड टेक ओवर द पोजेशन एंड देन स्टार्ट द ऑक्शन। Stamp duty and registration formalities are essential for certain type of mortgages and affect enforceability in many jurisdiction. Stamp duty registration की जो फॉर्मेलिटी है दैट इज रिलेटेड टू लीगैलिटी। अब लीगैलिटी के फॉर्मेट पे आपने किसी और फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे लीगल बनाया, इट्स ओके, सो इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट सिनेरियो, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 3, 5। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो लिमिट्स है वो रिवाइज की है, ध्यान रखना। प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग। क्या प्रायोरिटी में ये सब इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? द टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर आर प्रिस्क्राइब्ड एज परसेंटेज ऑफ ए एंड बी सी, दैट इज ट्रू। बैंक फेलिंग टू मीट priority sector lending targets are automatically penalized with monetary fines under the RBI Act। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ कि डायरेक्ट क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, एक्चुअली में वो पेनल्टी डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। जो लिमिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की आप पूरी नहीं कर पाए, उतनी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड बाय आरबीआई, सिडबी, और उन फंड्स को, सॉरी नाबार्ड, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी द्वारा वो फंड्स को मेंटेन किया जाता है, उन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, और वहां से उन पैसों को फर्दर यूज किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, और बैंक को जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी वेरी लेस। तो डायरेक्ट पेनल्टी नहीं है, बट इनडायरेक्टली दैट इज अ पेनल्टी जो बैंक अर्न कर सकता था, उससे कम अर्निंग्स होंगी बैंक की। माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल लोन्स टू फार्मर्स आर अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज। Microfinance and farm loans are a part of priority sector. That is true. Lenders must obtain documentation and classification practices for priority sector lending advances as per the RBI instructions. ये भी ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर फाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड इज डिजाइन प्राइमरीली फॉर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट टू द फार्मर्स, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिक्सेस एग्रीकल्चर मिनिमम सपोर्ट, ना, फसल बीमा योजना में एमएसपी का कोई रोल नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेपरेटली। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स यूजुअली हैव अ टेन्योर टाइड अप टू क्रॉप साइकिल, जनरली अप टू 12 months, दैट इज करेक्ट। मीडियम टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट typically covers purchase of equivalent and has no
एंड हैज लॉन्गर टेन्योर, मीडियम टर्म में लॉन्गर टेन्योर होगा, यस ट्रू। KCC can be used for seasonal working capital as well as for term credit within prescribed limit। जो KCC है वो provisions है for cash credit and limited term finance, वो as per the norms होगी। So keeping that in mind, answer is going to be D option 1, 3, 4, 5 are correct। अगला क्वेश्चन देखो, interactions of SARFAESI and IBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code। Once CIRP use IBC begins statutory moratorium prohibits enforcement actions against the corporate debtor। क्या ये पॉइंट सही है? सर ये बिल्कुल सही है। मोराटोरियम अंडर IBC बार करेगा सर्टेन एनफोर्समेंट्स इंक्लूडिंग SARFAESI वंस CIRP स्टार्ट होगा। तो जब आपका CIRP इन्वॉल्व हो जाता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस में SARFAESI रिलेटेड जो नॉर्म्स है उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, कुछ नॉर्म्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में साइमल्टेनियसली यूज SARFAESI एंड फाइल इंसॉल्वेंसी, नहीं सर, दोनों में से कोई एक यूज होगा, साइमल्टेनियसली दोनों यूज नहीं हो सकते। तो इफ CIRP पेंडिंग, SARFAESI एनफोर्समेंट इज बार्ड। प्री CIRP सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन चूज फॉर SARFAESI। नेक्स्ट इज SARFAESI रेमेडीज रिमेन अवेलेबल फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट द पर्सनल guarantors even after the corporate insolvency of principal debtor। ये बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कहता है, फाइलिंग a recovery application before DRT does not prevent filing an insolvency application under IBC। बिल्कुल। on intimation of CIRP the power to adjudicate claims moves exclusively to DRT in case of limited liability partnership and it moves to NCLT in case of company। that is true। so answer to this particular question क्या बनेगा सर? 1, 3, 4, 5 हमारा आंसर बनना चाहिए, हाँ या ना? नहीं सर, ये पॉइंट दोबारा से पढ़ना। NCLT is the insolvency forum, DRT has different domain। अगर हम jurisdictional interplay complex को देखें तो NCLT handles the corporate insolvency once it is initiated। तो ये जो corporate insolvency resolution प्रोफेशनल वर्ड आ गया तो इसका मतलब कॉर्पोरेट है। तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड अगर कोई इंसॉल्वेंसी का केस है, दैट कैन नॉट गो टू DRT, इट विल डायरेक्टली गो टू NCLT ओनली। सो कीपिंग दैट इन माइंड 1, 3, 4 आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ आ रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर दीजिएगा। देन वी हैव लिमिटेशंस एंड रिकवरी कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लाया हूं। पहला, अ सूट फॉर रिकवरी दैट इज टाइम बार्ड मे स्टिल प्रोसीड इफ द defendant admits liability by written acknowledgement during the limitation period। written acknowledgement restarts the limitation, ये बिल्कुल सही है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। so answer is going to be first option। second point is limitation runs from date of default and cannot be restarted। गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही काउंटर कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। moving on to the next one, banks can maintain suits or applications and simultaneously pursue alternate remedies unless specially barred by law। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? दैट इज करेक्ट। जो बैंक्स है दैट में pursue remedies, legal suits, SARFAESI unless specific overriding laws are already applied। ठीक है जी। अगला पॉइंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी यूज्ड एज अ रेमेडी इन रिकवरी एक्शंस अंडर द सर्टेन कंडीशंस। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर IBC ऑलवेज सुपरसीड्स लिमिटेशन कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कंसिडरेशंस है वो होंगी, दैट हैज बीन नॉट रिमूव्ड इन दिस केस ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, रिकवरी अंडर SARFAESI। तो रिकवरी अंडर SARFAESI के केस में पहला, डेटर अग्रीव्ड बाय बैंकर SARFAESI एक्शन कैन अपील विद DRT और DRAT, बिल्कुल सही है। फाइलिंग एन अपील टू DRT ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स एनफोर्समेंट अंडर SARFAESI, नो सर, ये तो गलत हो गया ना। इफ DRT allows appeal, it can stay the sale of secured assets pending hearing। that is true, बिल्कुल सही है। अगर DRT ग्रांट करता है interim orders including the stay to protect the interest of the borrower, that is true। अगला पॉइंट क्या कहता है, borrower may also raise counter claims before DRT regarding debt quantum। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं। DRT जो है वो क्या करेगा सर? DRT can examine the claims or defenses regarding the debt and enforcement। तो borrower may also raise counter claims before it, that is true।
अगला पॉइंट है डीआरटी प्रोसीडिंग्स आर समरी एंड डू नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट प्लीडिंग लाइक सिविल कोर्ट्स। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। दे डीआरटी प्रोसीजर इज समरी रिलेटेड टू रेगुलर कोर्ट, बट उसमें भी कुछ स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, कुछ एसओपीज है, यू हैव टू फॉलो। सो इट इज नॉट द केस की इट्स नॉट एन इनफॉर्मल platform where you get your cases resolved. So this is not correct. Answer is going to be A option. समझ आया? Is it clear to everyone? Moving on to the next question. Practical points on recovery and enforcement. देखते हैं कौन कौन सही बता पाएगा. If you are working in bank, you can give me the answer. Bank must follow the statutory procedure under SARFAESI before taking possession. Failure to do so can invalidate actions. ये बिल्कुल सही है सर. Statutory procedures, they are mandatory. Non-compliance can be set aside. Banks may recover reasonable cost of sale or auction from proceedings before returning surplus to the borrower. Bank जो है may recover reasonable cost of sale or auction from proceedings before returning surplus to the borrower. क्या है ये पॉइंट? बिल्कुल सही है सर. रियलाइजेशन कॉस्ट रिकवरी तो करनी होगी, सरप्लस बोरो को वापस कर देंगे. सही है. अगर 10 लाख का लोन था, 15 लाख रिकवर हो गया, 5 लाख वापस कर दो. दैट इज अ पॉइंट. अंडर SARFAESI, lenders can repledge to third parties without following sale procedures. क्या ये अलाउड है? नो सर, दिस इज नॉट अलाउड. Compensation for wrongful taking, loss, damage of pledged assets may be claimable. हाँ, आप क्लेम कर सकते हैं बैंक के ऊपर. Internal policies of bank can trump statutory safeguards provided by RDDBFI. That is correct. Is it correct? No sir. Bank policies cannot override. बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इन लॉस को, इन एक्ट्स को ओवरराइड कर दे. सो दिस इज नॉट अलाउड. आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. 1 to 4 आर करेक्ट. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऑन बैंक्स ड्यूटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट प्रैक्टिसेस, अगर हम इसकी बात करें तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इशूइंग बैंक अंडर एन लेटर ऑफ क्रेडिट मस्ट पे इफ द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड comply strictly with credit terms even if goods are defective. क्या ये पॉइंट सही होगा? ये सही है सर. Advising banks may add confirmation which increase beneficiary safety. सही है. The doctrine of autonomy makes letter of credit payment independent of disputes in the underlying contract. ये बिल्कुल सही है सर. ये बिल्कुल सही है. Autonomy principle hold करेगा इस केस में. अब बैंक में refuse letter of credit payment if it has bona fide reason to believe documents are forged. Fraud या forgery exception exists. उस केस में बैंक रिफ्यूज कर सकता है to make the payment. That is correct. Under UCP 600, a minor discrepancy automatically entitles beneficiary to payment. ये सही नहीं है. This is not correct. इसमें अगर मैं कहूंगा, अगर मैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे बात करूंगा तो मेरी फिफ्थ स्टेटमेंट यहां पे क्या कहती है? अंडर द यूसीपी 600 माइनर डिस्क्रिपेंसी मे स्टिल लीड टू रिजेक्शन, नो ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट. दैट इज अ केस. बैंक में रिफ्यूज. हाँ सर, बैंक रिफ्यूज कर सकता है. सो आंसर इज ए. मैंने बोला सही था, मार्क गलत किया. आई एम सॉरी फॉर दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ऑन ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक्स ऑब्लिगेशंस अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, उस बेसिस पे अगर हम बात करें, बैंक्स एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स फॉर अपरेंट कंफर्मिटी. They are not issuers of the contents truth. ये बिल्कुल सही है सर. बैंक जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करता है, not physical inspection of the goods is done. Discrepancies may be waived by issuing bank or applicant to facilitate payment. Parties may agree for the waiver of discrepancies. ये सही है. Transport documentation must show shipment by courier named in letter of credit. Otherwise डॉक्यूमेंट इज नॉन कंप्लायंट. ये बिल्कुल सही है. आपका जो कैरियर है उसका नेम लेटर ऑफ क्रेडिट पे जरूर होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. इशूइंग बैंक मे डिसऑनर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन extraneous evidence of seller's wrongdoing. Bank typically do not use any kind of extraneous evidence beyond documents. तो उस केस में बैंक इस चीजों को नहीं इंस्पेक्ट करता. Honor under a confirmed letter of credit implies confirming bank has secondarily guaranteed the buyer's performance. ऐसा है क्या? नहीं सर. This is wrong. So answer to this particular question is A option. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. बिल्स एंड डिस्काउंटिंग पे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया, देखना जरा. पहला, when a bank discounts a bill of exchange, it becomes holder
एंड टेक्स रिकर्स एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉअर, बिल्कुल सही है सर, अब आप ओनर बन जाओगे उस बिल के, दैट इज करेक्ट. If bank purchases bill by transfer of funds with no recourse, it loses the right to recover from the drawer upon dishonor. नहीं सर ऐसा नहीं है. If bank buys without recourse, it cannot recover from drawer after dishonor. So if bank purchases a bill by transfer of funds with no recourse, it loses the right to recover from drawer upon dishonor. तो उस केस में हम क्या कहेंगे? It cannot recover. If bank buys without recourse, तो उस केस में it loses the right to recover from the drawer upon dishonor. ये सही है. Next is factoring assigns receivables outright, whereas discounting a bill involves a negotiable instrument with recurse practices. ये सही है. Acceptance of a bill by a drawee is a primary undertaking to pay at maturity. बिल्कुल सही है सर. Next point है dishonor of a bill automatically voids underlying debt obligation to the drawer. नहीं सर ऐसा थोड़ा ना, अगर आपका dishonor होगा पेमेंट तो करनी पड़ेगी. यहाँ पे आंसर जो बनेगा that should be 2 option also. So A option is correct. 1, 2, 3, 4. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? On the deferred and documentary credits. पहला पॉइंट, a user's letter of credit allows deferred payment at specified future date after shipment. बिल्कुल सही. Negotiation under letter of credit means sale of document to a nominated bank for immediate payment or discount. That is correct. अगला पॉइंट क्या कहता है? In a confirmed letter of credit, beneficiary recurs is only to the applicant after maturity. No sir, that is not a case. In confirmed letter of credit, confirming bank is liable if issuing bank does not pay on the due date. Beneficiary has a right against confirming bank. अगला पॉइंट आता है, द बैंक्स मस्ट इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर इन कंप्लीट कंप्लायंस. दैट इज ट्रू. यूसीपी, दैट इज यूनिफॉर्म customs and practices, is mandatory law binding on banks. Is that the case? nahi sir. UCP 600 is a private uniform set adopted by parties and many banks. It is not statutory law but widely इसे बाइंड कर लिया जाता है with the help of a contract. लॉ नहीं कहता इसे करो, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि हम इसे फॉलो करेंगे, तो फॉलो करना पड़ता है. सो उस केस में हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी डी ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग गाइस, ऑन द पेमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक्स प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स. तो पहला पॉइंट क्या है? इशूइंग बैंक ऑब्लिगेशन टू पे अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट. रॉन्ग. नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग बेनिफिशियरी मस्ट शो डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली कंप्लाइंग विद लेटर ऑफ क्रेडिट एंड यूसीपी. Is it correct? Issuing bank obligation to pay under LC, हाँ ये तो सही है. Presenting beneficiary सही है. Bank may refuse to honor letter of credit if there is an obvious fraud in documents. If there is an obvious fraud in documents, even if presentation confirms, bank may refuse. बिल्कुल कर सकता है. Under an irrevocable letter of credit, issuing banks may revoke it without beneficiary consent. No. Advising bank has the right to unilaterally add confirmation to an letter of credit issued by the another bank. That is not true. ये नहीं हो सकता. So answer is going to be only 1, 2 and 3. A option is the correct answer. ठीक है जी, समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया. So these are some of the questions for the evening. I'm pretty sure एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पीडीएफ में भी ऐड किए हैं. आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं. और हमारा क्रैश कोर्स लाइव है. डू ज्वाइन इट इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. गुड लक गाइस.